का 9 अध्याय और उसकी 28 आई। इब्रानियां 9 अध्याय 28 आई। प्रभु के वचन च इस तरह लिखा है, जिमें मसीह भी बाहलियां दे पापां नूं चुकण लई पार चढ़ाया गया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦੂਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। प्रभु का कलाम इस आयत में फिर पढ़ना, बड़े ध्यान नाल सुनो। वचन लिखा, जिवें मसीह भी बाहलियां दे पापां नूं चुकण लई इक्को ही वार चढ़ाया गया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦੂਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਪਰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਪਿਤਾ। और प्रभु मैं तेरे ते निर्भर हाँ, तो अपना वचन इस जगह से बोल। सुनने वाले श्रोते प्रभु की बेटियां और प्रभु के बेटियां यीशु नाम च बड़ी बरकत प्रार्थना यीशु नाम विच मांगदे आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा ते वडियाई हो। आमीन। ਅਸੀਂ अपने प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि साडे प्रभु ने साडियां जिंदगियां दे अंदर ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि बाइबल दादी है कि दाऊद सी जिन्हें क्या कि मैं खुश होया जो तो मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। आमीन आमीन। विश्वासी ब्रदर ब्राह्मण क्या विश्वासी ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੁਝ ਡੀਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਪਾਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु मसीह दे समर्थी नाम की महिमा और बढ़ाई हो। आमीन। असी प्रभु यीशु ने पवित्र वचन जो पढ़ा है इब्रानियां 9 अध्याय और 28 आयत 9 अध्याय और 28 आयत प्रकट करता है कि मसीह ने प्रभु यीशु ने पापां नूं चुकण दे लई वो सलीब उत्ते चढ़ाया गया। की करन दे लई? पाप ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ? ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗਤ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਂਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ स्वर्ग ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਪ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਇਆ। और धन्यवाद है
ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲਏ। सच है आमेन ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। आमेन हालेलुया ਕਿਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ। सच है ਕਿਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, आमेन ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਹੈ, ਸੱਚੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। आमेन ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ और वो मैसेज का नाम है स्वर्ग से उठाए जाना, यानी कि रैप्चर मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रायन ने कहा कि समा 6 ਤੋਂ 9 ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, यानी कि क्योंकि 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਪਰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, हालेलुया ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। सच है ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਉਹਦਾ 25 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੀ ਸੀ? 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਉਹ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ 5 ਬੁੱਧਵਾਨ ਸੀ। ਕਿ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼? ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? 10। 5 ਬੁੱਧਵਾਨ ਔਰ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। हालेलुया ਔਰ ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ आमेन ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ? ਬੁੱਧਵਾਨ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ? और कई इस जगह तो कह सकते कि वो संस्थामा है, मिशना है। वो मिशना नहीं है क्योंकि कुवारियां नहीं हो सकती। हालेलुया हालेलुया। एक कैटेगरी है कि वो कुवारियां हैं
संस्थावां कुवारियां नहीं है। ये याद रखो, ये पौलुस के शब्द है कि उन्हें दुल्हन नू यानी कि कलीसिया नू मसीह ने अर्पण किया। हालेलुया। और एक आयत में से पढ़ते हैं, अपनी गल नू और क्लियर करने के लिए प्रभु का वचन पढ़ांगे। प्रभु का पवित्र कलाम अस पढ़ने वाले कुरिन्थियों की पुस्तक 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 आयत वचन च लिखिया, तुहाडे लई मेरी अणख परमेश्वर जही अणख है, इसलिए जो मैं इको ही पति नाल तुहाडी कुड़माई की थी। पौलुस की कह रहा है और किन्नू कह रहा है? कलीसिया नू। कि सुन पा रहे हो सारे? गल की हो रही है? कलीसिया दी गल की हो रही है, कलीसिया की गल हो रही है। और पौलुस कह रहा है, वचन च लिखिया, इसलिए जो मैं इको ही पति नाल तुहाडी कुड़माई की थी। और पौलुस की बन गया है एक विचोला। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस की बन गया है एक विचोला, और किदा? मसीह और दुल्हन दा, स्वर्गी लाड़ा और धरती दी लाड़ी दा। हालेलुया। ओ याद रखो, कह रहे हैं मैं कुड़माई की है, एक रिश्ता जोड़िया है। शादी तो पहले की हुंदा है? पहले कुड़माई हुंदी है, रिश्ता ही जोड़ता है। हालेलुया। और कौन कह रहे हैं? पौलुस जो पहली कलीसिया दा दूत है। आमीन। वो कह रहे हैं कि मैं कुड़माई की थी पई तानू पाक कुवारी वांगू मसीह दी अर्पण करा। किस तरह दा अर्पण करा? पाक, शुद्ध, निष्कपट, जिदे अंदर पाप और गुनाह ना आवे। वो कह रहे हैं मैं किदे अगे पेश करना है? मसीह दे। वो कौन है? पहली कलीसिया दा दूत। हालेलुया। बड़े ध्यान नाल सुनियो तो समझियो भी। आमीन। वो पहली कलीसिया दा दूत है, पर असी सतमे दे अंदर हां, असी सतमे जोग दे अंदर हां। हुन पहली कलीसिया दा दूत कह रहे कि मैं रिश्ता जोड़िया है। जो सतमा दूत आया इस युग दा नबी विलियम मैरियन ब्रानहम, तो उन्हें कलीसिया ने कहा कि हुन तो मैं तेनू, कलीसिया नहीं कहता, श्रीमती यीशु मसीह कहता। किन्नी मेरी गल समझे? हालेलुया। इधर करे ध्यान करियो सारे, सुनियो और समझियो, क्योंकि साडा मतलब है इकट्ठे होने तो कि असी प्रभु दे वचन नूं सीखिए, असी प्रभु दे कलाम नूं जानिए। सारियां भैणां भी इधर ध्यान करियो, कोई इधर उधर ना देखो थोड़े समय लिए, क्योंकि ये जिहड़ा समा है ये याद रखो, बाइबल दसदी है कि स्वर्गदूत देख रहे, स्वर्गदूत देख रहे हर किसी पर, तुहाडी हर एक गल नूं नोट किया जा रहा, क्योंकि इस जगह ते प्रभु दी हजूरी है। हालेलुया। जे हजूर जिथे मेरा प्रभु है उथे ते दूत भी हुंदे आ। आमीन। हुन पहला नबी कह रहा कि मैं रिश्ता जोड़िया है, पर सतमा आया और वो कह रहा है कि उन्होंने शादी करवाई है। पौलुस कह रहा है रिश्ता जोड़िया, और इस युग का नबी कह रहा है कि हुन तो मैं तेनू, और की कह रहा है मैं तेनू श्रीमती यीशु मसीह कहता। श्रीमती यीशु मसीह का मतलब सानू केड़ा नाम मिलिया? दूल्हे वाला नाम। एदा मतलब असी भी मसीह बने किदे द्वारा? वचन दे द्वारा, ओदी प्रभु दी कृपा दे द्वारा। हालेलुया। पौलुस कह रहा पाक कुवारी वांगू दे अर्पण करना। आमीन। हालेलुया। हुण बड़े ध्यान नाल जेकर तुसी समझ गल, कोई भी औखा नहीं है प्रभु का वचन। नबी ने क्या संस्थावां ने वचन औखा बनाया, पर इस युग का जो दूत आया उन्हें वचन इतना आसान किया है कि अनपढ़ भी इस कलाम नूं सीख सके। प्रभु का वचन साडे युग के नबी ने इदा खोलिया कि अनपढ़ तो अनपढ़
ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦੂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਮ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। शादी होने के बाद अगला काम है दूल्हे दा जीवन दुल्हन दे अंदर आना। और साडा दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु। आमीन। कि तुहाडे अंदर वो पवित्र आत्मा है और यीशु दा जीवन है। हालेलुया। बड़े ध्यान नाल सुनो कि ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ मत्ती 25 अध्याय ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ और की कर रही हैं? इंतजार। पलूस कह रहा इब्रानियां दी किताब के अंदर वो जेड़े प्रभु दी उड़ीक कर रहे हैं, वो जेड़े प्रभु नू उड़ीक रहे हैं, वो जेड़े अपने परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु उन्हां नू लैण दे लई दूजी बार प्रगट होवेगा। उन्हां नू लैण दे लई। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। आमीन। पर इस तो पहला कि प्रभु लैण दे लई आवे, वो जेड़े इंतजार कर रहे हैं, प्रभु उन्हां दे लई अपने दूत नू भेजण दा वादा कीता गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर इस जगह ते मैं थोड़ी देर लिए रुकना चाहता, ज्यादा समा तो मैं नहीं लवांगा, पर मैं आपको दसना चाहांगा इस जगह ते प्रभु किन्ना नू लैण दे लई आवेगा? जिन्हां ने तौबा की है, जिन्हां ने बपतिस्मा ले लिया है। ये नहीं लिखा गया, पर लिखा गया जेड़े प्रभु की उड़ीक कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मैं दसांगा बहुत तौबा करन तो बाद और बपतिस्मा लैन तो बाद उनका काम हुंदा है कि अपने प्रभु की उड़ीक करिए, अपने प्रभु का इंतजार करिए। तुसी उड़ीक करनी है। आमीन। आमीन। कि तू जानदे चेलियां नू यीशु मसीह दा आखिरी प्रचार की सी, पिता दे करार दी उड़ीक करो, आमीन। इंतजार करो, हालेलुया। उदे तक बैठे रहो जब तक तुसी अभिषेक नाल भर नहीं जांदे, आमीन। जब तक पवित्र आत्मा आ नहीं जांदा, हालेलुया। जब तक शक्ति आ नहीं जांदी, जब तक सामर्थ आ नहीं जांदी, उद तक इंतजार करो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर की तुम जान दो, अज इंसान जल्दी चाहिए, दौड़ भजाई चाहिए। काम ते है कि प्रभु का इंतजार करिए, प्रभु की उड़ीक करिए, पर इंसान दिया सोचा कुछ हो रही है। अज ने चावाना दिया सोच कुछ होर है, पर कम की है प्रभु का इंतजार करना। की तुसी कदी इंतजार कीता है? बड़े ध्यान नाल सुनियो, की तुसी इंतजार कीता कदी अपने प्रभु का? क्योंकि बाइबल च लिखा है यहोवा नू उडीकण वाले नवे सिरे तो बल प्राप्त करना। वो दौड़नगे ते थकणगे नहीं, पर कौन? जेड़े प्रभु की उड़ीक करदे। की तुसी उड़ीकिया है कदी? की उहदा इंतजार कीता? प्रभु इदा नहीं है कि छेती नाल आवाज मारी, छेती नाल आ गया, हाजिर हो गया, नाल आ गया। उहदा इंतजार करना पैंदा है। और अज गल ये है कि प्रभु का इंतजार करना है। किन्ने करना है? वो जेड़े प्रभु नू उड़ीकदे हन, ओही उड़ीकणगे जिन्हां ने इस युग दे कलाम नू जानिया है, जान नू समझ लिया है, जिन्हां ने अपना जीवन यीशु नू दिता है। उन्हां दा काम है उड़ीक करना। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उनका काम है अपने प्रभु का इंतजार करो। कि तुसी प्रभु का इंतजार कीता? कि प्रभु तेरे वचन का वादा है कि मैं तेन पवित्र आत्मा दवांगा। कि कदी इंतजार कीता कि प्रभु मैनू पवित्र आत्मा चाहिए है? क्योंकि तू क्या है? तू क्या है? और जे तू क्या है तो तेरा कलाम पूरा होगा। इसलिए इंतजार करो, बैठ जाओ, लगे रहो, क्योंकि इस लोग नबी ने हुई क्या है।
क्योंकि ब्रदर ब्राह्मण क्या, पवित्र आत्मा तो बिना ਤੁਹਾਡਾ छुटकारा नहीं है। पवित्र आत्मा टोकन है, पवित्र आत्मा मोहर है, पवित्र आत्मा तो बिना उठाए जाना नहीं हो सकता। ਇਹਦਾ मतलब इंतजार कादा करना है कि प्रभु मैनू पवित्र आत्मा चाहिए है, प्रभु मैनू पवित्र जीवन चाहिए है, प्रभु मेरे तो लापरवाही खत्म होवे। इंतजार करो, प्रभु को कहो प्रभु मैनू चाहिए है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा ते वडियाई हो, क्योंकि दा ए जुड़िया है स्वर्ग ते उठाए जान दे नाल। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हुण 10 कुआरियां भी इंतजार कर रही सी दूल्हे दा। हुण जे मूर्ख कुआरियां ओ कौन है? ओ कुछ इदां दे लोग आ मैसेज दे अंदर ही जेड़े वचन नूं जानदे आ, कलाम नूं जानदे आ, अपने दूत नूं जानदे आ, 28 फरवरी 1963 वाले बदल नूं जानदे आ, मोहरां नूं जानदे आ, पर ये सारा कुछ जानने के बावजूद उन्हां च लापरवाही है। एंड उत्ते उन्हां मूर्ख किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कित्थे जाना है, ये मैं तुहानूं दसदा कित्थे जा रहे हो। उन्हां नूं लंघना पवेगा ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ, ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆ ਮੂਰਖ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਲੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, प्रभु दे काम दे विच कदे भी लापरवाही ना होवे। बाइबल दी आयत है, प्रभु दे काम करया करो। हालेलुया, हालेलुया। कदे भी प्रभु आत्मा नू ना बजाओ, प्रार्थना लगातार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये है प्रभु दा कलाम कि लापरवाही वाले आत्मा नू जीवन चो उखाड़ के बाहर सुट दबो। कौन है जो दुल्हन दे बाते हुए कदमां नू रोक सके? और गलातियां की पुस्तक के अंदर एक आयत लिखी गई, इस आयत में पढ़दा है। गलातियां की किताब और प्रभु का वचन असीं पढ़ रहे हैं, उसकी 5 आयत। गलातियां की किताब 5 अध्याय और 7 आयत। गलातियां की किताब 5 अध्याय 7 आयत। वचन लिखा, तुसी तां चंगी तरह दौड़दे सो। किन्नन मेरी गल समझ लगी? की करदे सीगे? चंगी तरह। बाइबल लिखा, तुसी तां चंगी तरह दौड़दे सी। किसने तुहानू डक दिता भई तुसीं सच्चाई नूं ना मन्नो? ये खचर विद्या तुहाडे सदन वाले दे वल्लों नहीं, थोड़ा जिहा खमीर सारी तो। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कह रहा तुसीं तां किदां सी? चंगी तरह दौड़दे सी। हुण चंगी तरह दौड़ केड़ी है? कदी जोश हुंदा है, फिर इंसान तौबा करदा, जोश सी ओहदे अंदर। और बहुत नेचावाना दी जिंदगी के अंदर एक कंडीशन है। हालेलुया, हालेलुया। कदी जज्बा है सच्चाई नूं दसन दा, कदी जोश है कि मैं प्रार्थना करनी है और मैं प्रभु की सामर्थ देखना चाहता हाँ, प्रभु मैं तेरी शक्ति नूं अपने घर च देखना चाहता हाँ, और प्रभु मैं तेरे लिए प्राणा नूं बचाना चाहता हाँ। एक कदी जोश सी, कदी जज्बा सी, पर वचन कह रहा है किन्ने रोकिया है, किन्ने रोक दिता, और कह रहा ये जिन्हें सद्या ओदे बल्लों नहीं है, ये कोई होर है। सदन वाला तो तानू प्रभु यीशु है, पर डकन वाला शैतान है। किन्ने रोकिया है कि तुसी प्रार्थना ना करो? किन्ने रोकिया कि तुसी वचन की आज्ञाकारी ना करो? किन्ने रोक दिता कि इस जुग दा कलाम जो कि जीवन है उन्हें छड़ के एक साइड पर रख दबो? ये खचर विद्या किदी है? की तुहानू पता लगा किदी है?
ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਕੌਣ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ? ਅਸਲ ਚ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਹੋਵੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ और उन्हें पता लग जाए कि दुश्मन आ गया है, लेकिन होर सोवेगा, होर लापरवाह होएगा। दुल्हन जड़ी है मसीह दा मैंबर जड़ा है नहीं। मेरे नबी ने किया, शैतान जिस भी जगह ते मिलता है उस जगह ते ओदा मुकाबला करो, क्योंकि वो जड़ा तुहाडे अंदर है शैतान नालों वड्डा है, जड़ा तुहाडे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। तुसीं जानदे हो अपने आप नूं गोलियत किन्ना क वड्डा दस रहा सी, मैं बहुता ही वड्डा आ, और कह रहा सी कि मैं महान हाँ, मेरे नाल कोई लड़ नहीं सकदा, मेरे नाल कोई युद्ध नहीं कर सकदा। हालेलुया। पर ये मैं तुहानूं दसना चाहता, जेड़ा दाऊद दे अंदर सी वो गोलियत नाल भी वड्डा सीगा। हालेलुया। जेड़ा तुहानूं रोक रहा है, पर जिस प्रभु ने तुहानूं सद्या है वो शैतान नालों किते महान है। हालेलुया। प्रभु दा वचन दा वादा है, अब्राहम दा वंश शैतान दे फाटकां उत्ते प्रबल होवेगा। जे तुसी अब्राहम दा वंश हो ते फिर आलस उत्ते तुसी प्रबल होना। जे अब्राहम दा वंश हो, जे सचमुच तुसी अपनी जिंदगी यीशु नूं दित्ती है तो तुसी शैतान ते जित प्राप्त करके जाओगे, तुसी शैतान नूं पैरां थल्ले करके ही जाओगे, क्योंकि यीशु दा वचन टल नहीं सकदा। जमीन टल सकदी है, आसमान टल सकदा है, पर मेरे यीशु दा कलाम कदे नहीं टल सकदा। यीशु दा वचन पूरा होवेगा। शैतान कुछ भी कर लवे पर वचन नूं पूरा होण तो रोक नहीं सकेगा। और वचन दा वादा है कि प्रभु दे लोग प्रभु नूं उडीकणगे, उन्हां नूं लैण दे लई मेरा यीशु आ रहा है। हालेलुया। जेड़े यीशु दियां बेटियां हन वो अपनी जिंदगी च लापरवाही नूं खत्म करनगियां और अपना निशाना, अपना टारगेट वो रखणगियां, जिद्दां पौलुस कहंदा, मैं अपने मेरा अपने टारगेट वाल जा रहा है। तादा उद्देश्य की है? क्यों आए यीशु वाल? क्यों मैसेज नूं कबूल कीता? की है टारगेट, की है उद्देश्य? निशाना है जिथे यीशु है उथे असी भी जाना है। जिस काम लिए खुदा ने अपने नबी नूं भेजिया, असी उस मकसद दा हिस्सा हां। तुसी योजना दे अंदर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुसी योजना तो बाहर नहीं हो, तुसी योजना दे अंदर हो, तुसी प्लान दे अंदर हो। प्रभु तुहानूं तैयार कर रहा है। वो पवित्र आत्मा तुहानूं अंदरों हिलावेगा, पवित्र आत्मा तुहानूं झंझोड़ के रखेगा, क्योंकि ब्रदर ब्रानहम ने कहा 7 गरजां आ रही हन, 7 गरजां आ रही हन लाड़ी नूं जगाउण दे लई। किन्नू जगाउण दे लई? लाड़ी ने जागना। हालेलुया, हालेलुया। तुसीं जानदे जो 10 कुवारियां सौ गईयां इंतजार करदे करदे कि पता नहीं कदों आना, पता नहीं कदों आना, पता नहीं कदों आना, थोड़ी रेस्ट ही कर लो, रेस्ट कर लगी, लेट ही है। और इतना ही कई सोचते हैं कि प्रभु ने पता नहीं कदों आना, जाना। कई मैं मेरे को लोग आंदे कई बार अपने जीवन बारे दसदे, और एक भाई सी वो कह रहे कि मैं तोबा करनी है पर उदों करनी है जो यीशु मसीह आ जाएगा, आ जाएगा, पता लग जाएगा यीशु आने वाला। मैं फिर करना चाहता कि मेरे को कोई गलती ना हो जाए फिर कि उस टाइम से तोबा करनी है कि जो प्रभु ने आना ही है तो उदों मैं तोबा करना चाहना। जे मैं तोबा कर ली मेरे को फिर गलतियां हो जानियां कि डर है मैनू। पर असली जी तोबा है, असला जरा प्रभु नाल प्यार है,
जेकर तुसी इब्रानिया 4 अध्याय पढ़ो, इब्रानिया 4 अध्याय च लिखिया जिस दिन उसकी आवाज नूं सुनो ते अपने हिरदे नूं कठोर ना करो। हालेलुया। जदों तुसी ओदी आवाज नूं सुनो ते हिरदे नूं कठोर ना करो। बड़े ध्यान नाल सुनना, जिद्दां ही वो सौ जांदे आ तसी और बाइबल लिखिया अद्धी रात नूं धुम मची। ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਮ ਮਚਣੀ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਸੌ ਗਈਆਂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੁੰਮ ਮਚੀ, एक आवाज आई और वो आवाज सी उठो और जागो, दूल्हा आ गया है। हालेलुया 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 हालेलुया। ब्रदर ब्राह्मण क्या ये जड़ी अद्धी रात की आवाज सी, ये जगान वाली आवाज सी और ये जगान वाली आवाज ब्रदर ब्राह्मण क्या 7 गरजा हैं जो दुल्हन नूं जगान गियां। हालेलुया। दुल्हन नूं जगान गया। ये 7 गरजा, हुण 7 गरजा की है? ये प्रचार जो तुसी सुन रहे हो इस 7 गरजा का प्रचार है, क्योंकि ये खुली हुई पोथी का प्रचार है। हालेलुया हालेलुया। ये समावेगा नहीं, ये दुल्हन नूं जगा देगा। हालेलुया हालेलुया। ये 7 गरजा का प्रचार दुल्हन नूं जगान दे लई है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा च विड़ाई हो। इस संस्थावां का प्रचार जड़ा है वो प्रचार है। नबी ने कहा कि एक मैं शुक्रवार मीटिंग से दस रहा सीगा, सुबह की मीटिंग में दस रहा सी, ब्रदर ब्रानम किसी इंसान नूं वचन की गवाही दस रहा सी तो उन्हें कहा कि साडा पास्टर बड़ा ही वफादार ते बड़ा प्यार करदा, बड़ा चंगा है। ब्रदर ब्रानम ने दसिया वचन, पर वो अगों उन्हें शुरू किया कि जिहड़ा साडा पास्टर, इसलिए असीं उहनूं नहीं छड्ड सकदे पास्टर नूं, क्योंकि चंगा बहुत। और किदां दा चंगा? उन्हें कहा कि साडे नाल प्यार बड़ा करदा। उन्हें दसना शुरू किया कि साडे नाल प्यार बहुत है। उन्हें कहा एक दिन साडे घर विच आया, रात दा समा सीगा, साडे घर विच आया और असीं और मैं और मेरी पत्नी और साडा पास्टर साडे घर विच आया सी, मिल के किसी दूसरे भाई के घर विच जाना सी। तो कहंदा सी जो उत्थे गए तो उत्थे जिहदे घर च असीं प्रेयर करनी सी, उत्थे वो आदमी जिहदा घर सी वो किसी दूसरे आदमी नाल ताश खेल रहा सी। कहंदा साडा पास्टर इन्ना चंगा, वो भी लाके बैठ गया। कहना इसलिए असीं अपने सेवक नूं नहीं छड्ड सकदे, प्यार बहुत है, साडे वर्गा बन जाता जिद्दां दे काम साडे आ उदां दे ओहदे भी आ, ते इसलिए घुलिया मिलिया साडे नाल उहनूं छड्ड नहीं सकदे। तू चाहे लिस्टां दस, पर उहनूं नहीं छड्ड सकदे। इदां दा उहने कहा कि इदां दा प्यार सी ओहदा पास्टर दा। नबी बड़ा परेशान, इस युग दा नबी बहुत परेशान। 2-3 जगह ते ब्रदर ब्राह्मण ने इदां दे काम, इदां दी गवाहियां मिलियां। जिस दिन ब्रदर ब्राह्मण के मैं अपनी गड्डी नूं धो रहा सी, वॉश कर रहा सी, मैं प्रभु नूं सोचा परेशानी दे विच सी कि प्रभु ये लोग जिहड़े आ किदां एक सेवक नाल जुड़े आ और उन्हें छड्डना नहीं चाहते। और वो कह रहा कि प्रभु कि मेरे अंदर प्यार नहीं है, मैं भी अपनी कलीसिया नाल बहुत प्यार करदा आ, मैं भी अपनी कलीसिया नाल बहुत मुहब्बत करदा, पर यह किदां दा प्यार है? नबी ने कहा जो मैं गल्लां कर ही रहा सी, सोच ही रहा सी, प्रभु की आवाज़ मेरे को आई जिहड़े छोटे हुंदे समय मेरे नाल गल करदी सी। वही आवाज़ ने ब्रदर ब्राह्मण नाल गल कीती और ब्रदर ब्राह्मण नूं कहा तेरे हाथ विच तलवार दिती गई है। किन्ने ने मेरी गल सुनिया है? ब्रदर ब्राह्मण नूं आवाज़ ने कहा, वो आवाज़ कोई आम आवाज़ नहीं है,
वो आवाज वो है जो चट्टाना नू हिला दे। वो आवाज वो है जो बोले ते मुर्दे जिंदा हो जान। वो आवाज है जो शब्द बोले तूफान रुक जान। वो आवाज ब्रदर ब्राह्मण ना गल कर रही और उन्हें कहा तेरे हाथ विच तलवार दिती गई है। उन्हां दे हत्थां 'च कुछ नहीं है, वो खाली हन पर तलवार तेरे कोल। हालेलुया। हुण तू जांदे तलवार है, ओहदा काम की है? उनका काम है तलवार का काम तो कटना ही है। ब्रदर ब्राह्मण क्या संस्थावां दे जिहड़े प्रचार्य मिठे प्रचार्य स्वादले प्रचार्य खुश करने वाले प्रचार्य कलीसिया खुश हो जाती है क्योंकि प्रचार्य खुश करने वाले हैं। खुश करने का मतलब कि कलीसिया दे खुश किदां हुंदी है? दरता खुल जान, ठीक हो जान, रस्ते खुल जान, अमीर बन जान, तुसी आ हो जाना, तुहाडे लई चंगा ही चंगा होना है, कोई मुश्किल आनी नहीं। पर ये जी तलवार है, जी वचनी तलवार है, ये ते पाप नू छोटे जे नंबी अंदर रह नहीं दवेगी, ये तो पूरी तरह कटेगी पाप नू। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा ते वडियाई हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये आवाज जगाने दे लई है। आमीन। हुण मैं इस जगह ते कुछ दसना चाहता कि तुसी जाग चुके हो। आमीन। आमीन। कि सत गर्जा ने जगाया है कि ये समय के संदेश ने तेन जगा दिता है। जिथे जाग चुके लोग हैं उसे लापरवाही का काम नहीं, ये लापरवाही नहीं है फिर, क्योंकि जो जाग चुका है उसका काम है तैयारी करना। आमीन। जो जानता है कि मैं अपने दूल्हे को मिलना है, ये धरती उत्ते कुछ ही समा है, कुछ ही साल हैं, इत्थे ते मुश्किलां हैं, असीं होके परदे आ, बीमार हुंदे आ, परेशान हुंदे आ, पर असली जिंदगी ते दूसरी तरफ है। उस जिंदगी लिए तैयार हो जाओ, प्रभु दी आमद लिए तैयार हो जाओ। वो आ रहा लैन दे लई उन्हां नूं जिहड़े प्रभु नूं उडीक आमीन। कि तुसी इंतजार कर रहे अपने दूल्हे दा, अपने प्रभु दा, और उहदे लई की कर रहे हो? किदां दी तैयारी है? इस लॉकडाउन दे अंदर किन्ने क तैयारी की? ये महीनों के अंदर किन्ने क प्रभु च अगे बढ़े? क्योंकि मैं क्यों इस जगह कह रहा आज, क्योंकि फिर मेरा फर्ज है तुहाडे को पूछा मैं कि तुसी की कीता। एक दिन यीशु भी आवेगा, हर गल दा हिसाब लवेगा। कि लवेगा वो बाइबल दसदी है, हर एक गल दा लेखा लवेगा। आमीन। हालेलुया। किन्ना क जोर लगाया कि मैं वचन पढ़ा, किन्नी क ताकत लगाई कि मैं वचन जिंदगी के अंदर पूरा करा, किन्ना क अपना ताकत लगाई, किन्ना क अपने काम नू त्यागया कि मैं प्रभु प्रार्थना करनी है, तेरे नाल एक होना है, क्योंकि मैं इसलिए तेरे वचन को कबूल किया है कि मैं स्वर ते उठाए जाना कि उड़ीक कीती है इन चीज़ों की। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा और वडियाई हो। पर मैं कुछ समाप्ति के वेले हुण कुछ कहना चाहांगा। असीं बाइबल जो पढ़ते हाँ, शमशून दा ओहदे अंदरों निकल जाना। शमशून के अंदर सामर्थ सी, शमशून नू पवित्र आत्मा गाइड करदा सी, और एक दिन पवित्र आत्मा नू छड्ड के चला भी गया। पर फिर शमशून ओहदियां अखां बाहर कर दित्तियां गईयां, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, और दुश्मनां ने शमशून दा तमाशा लगाया। किन्ने ने सुनिया है? हालेलुया। जिन्होंने सुनिया अपना हाथ खड़े करके दसो हालेलुया। शमशून दियां अखां दा निकलना, संगलां नाल ओनू बन देना और जेल दे अंदर चक्की पीसना। फलस्तीनियां ने शमशून दा की कीता? तमाशा लगाया। ब्रदर ब्राह्मण क्या एक बहुत ही बड़ी ग्राउंड सी जिथे बहुत सारे जानवर अपने अपने करतब इंसान दिखा रहे सी। उस जगह ते शमशून नूं लैके गए कादे लई?
ताकि शमशून भी तमाशा करे, यानी कि मदारी विखावे। दूजे शब्दों के अंदर समझ गए? पर कौन चुनिया होया, कौन जिहदे उत्ते कदी अभिषेक सी, कदी 1000 फलस्तीनी समा सी कि ओदे लागे खलो भी ना सकते सी। डर सी दुश्मनां दे खेमे दे अंदर, क्योंकि शमशून अपनी ठीक पोजीशन ते खड़ा सी। डर सी दुश्मनां दे अंदर, ओदी गुप्त शक्ति दा किसे नूं खबर नहीं सी। हालेलुया। वो शक्तिहीन सी, शक्ति ओदे अंदर नहीं सी। मैं कहांगा जो नेचाबान के अंदर कोई सामर्थ नहीं रहिंदी, शैतान भी तमाशा लगा देगा। पर मैं ये जानता हाँ, मेरे नबी ने कहा शमशून दा बाल दा जाना और वापस ओदी शक्ति दा आना। ये दुल्हन है। दुल्हन की करेगी जो शमशून ने जीता है। और की कर रहा सी शमशून? सच्चा पश्चाताप, सच्ची तौबा, और मांग रहा है प्रभु मैनू बल चाहिए है, प्रभु पहले वाली सामर्थ चाहिए है, प्रभु पहले वाला समर्पण। पवित्र आत्मा जी मांग कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तुसी नहीं कभी जिंदगी सोचते कि मेरे को क्यों नहीं आए, जबकि जो मैं तौबा की जो सी मेरे अंदर, और मैं प्रार्थना दे विच वधिया सी, और मैं ते बाइबल नू अपने जीवन च पहला स्थान दिंदा सी, मैसेज नू मैं जीवन च पहला स्थान दिंदा सी। हालेलुया। हालेलुया। आज किथे चला गया उस समर्पण? किसने रोक दिता? किन्ने रोकिया? और बाइबल कह रही एक खच्चर विद्या सद्दन वाले बल्लों नहीं है, ये कोई दुश्मन का काम है, ये वैरी का काम है। कि तुसी ओदे अगे खलोना नहीं चाहते, वो दुश्मन अगे जो शैतान है। और बाइबल दस के शैतान का मुकाबला करो। किद्दां करना है? ढिले पै के फिर नहीं, पर बाइबल दस रही है डट के मजबूती नाल शैतान का मुकाबला करो। शैतान तुहाडे अगों फिर भजना है। जे तुसी ढिले रहे तो फिर नहीं भजते, फिर नहीं भजन वाला। मुकाबला मैसेज के अंदर ब्रदर ब्राह्मण ने कहा 2 मुक्केबाज जो लड़ते हैं, इस गल बड़े ध्यान नाल सुने, मैं समाप्त कर लगा। 2 मुक्केबाज, तुहानूं पता भी जो बॉक्सिंग खेलते हैं, 2 जने खेलते हैं, और हर एक चाहता है कि वो जिते। दोनों की कोशिश ये हुई है कि मैनू हरा के मैं जित जाना। जितना तुसी फेर हुंदा है जो तक तुसी दुश्मन नू हरा नहीं देंगे। इनाम एवं नहीं मिलता, इनाम मिलता है जो तक तुसी दुश्मन नू हरा नहीं। जित फेर ही यानी कि कोशिश की जाती है जो तक तुहाडा विरोधी चित ना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। और दोनों की मुक्केबाजा की कोशिश की होंदी है कि इहदी कमजोरी फड़िए, एक केड़ी तरफ कमजोर है, इहदे में पंच मारा ते केड़ी जगह ते मारा जिथे इनू ज्यादा सट लगे, इहदा कमजोर हिस्सा केड़ा है। लड़ाई के मैदान जाने तो पहलों उनकी बड़ी ट्रेनिंग होंदी है, और एक दूजे की वीक पॉइंट वो लभदे आ। दोवें मुक्केबाज ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸਲੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੰਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, शैतान भी उत्थे फड़दा, वही नब्ज फड़ेगा
जिस जगह तो तुहानू ज्यादा दर्द है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आमीन। पर मेरे नबी ने कहा जे दुश्मन समझो तुहाडा विरोधी तेज रफ्तार नाल लड़ रहा है, किन्ने मेरी गल समझ रहे हो? ध्यान सीधा रखियो पे, जे तुहाडा दुश्मन तेज है लड़न च ते तुसी ढिले, वो तुहाडे 10 मार रहा ते तुसी ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮਾਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਕੌਣ ਹਾਰੂਗਾ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਹਰਨਾ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ 10। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 10 ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ ਹੋ, ਗੱਲ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਹੋ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭੱਜਣਾ, ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੋ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫੇਰੀ ਹੋ, ਫੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਜ਼ ਹੈ। और नबी ने कहा, बड़े ध्यान नाल सुनियो हुण, नबी ने कहा कि वेले साडे पिंडां दा खेल है जिहड़ा कदी खेलिया जांदा सी, हुण कहा रस्से नूं खिच्चना, रस्से नूं खिच्चना। दो दल हुंदे आ, एक तरफ दूसरा दूसरी तरफ, की करदे दोवें जोर लगा रहे हुंदे आ। किन्नियां नूं पता है? और जोर लगा रहे हुंदे आ ते जिहड़ा कमजोर है ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਏਕਤਾ ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਤਰਫ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਸਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਮਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਣੀ ਹੈ, ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਖਸ਼ਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਇਸ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਆਵੇਗੀ, प्रभु स्वर्ग दे गलियारे तो आवेगा अपनी दुल्हन नूं लैण दे लई। हालेलुया। अपना अभिषेक देण दे लई, शब्द बोलण वाली सामर्थ देण दे लई। हालेलुया। और सब असीं घुटनियां ते आइए, अखां बंद करिए, आओ सब अपने हाथों नूं स्वर्ग वल उठांदे, सारे भैणां सारे भाई अपने हाथों नूं स्वर्ग वल उठावांगे, अपने सच्चे जीवित स्वर्गी प्रभु दा धन्नवाद करांगे, ओदी तारीफ करांगे, अपने प्रभु नूं कहांगे प्रभु मैनू मजबूत कर। प्रभु मैं बहुत कमजोर हाँ तेरे वचन के अंदर, पर मैं अगे बढ़ना चाहता हाँ, मैं अगे बढ़ना चाहती हाँ। प्रभु मैं तेरे पवित्र आत्मा नूं प्राप्त करना चाहता हाँ, प्रभु मैं तेरे अभिषेक नूं प्राप्त करना चाहता। खुदा जरूर तुहानूं बरकत देवेगा। उसको तो मंगो, उन्हें क्या मंगो, मैं तुहानूं दवांगा, खटकाओ मैं तुहाडे लई खोल दवांगा। मंगण वाले लोग चाहिए आ। अज अपने प्रभु को चंगियाई मांग सकते हो, जीवन मांग सकते हो, तंदुरुस्ती मांग सकते हो, अपने परिवार लई तंदुरुस्ती मांग सकते हो, अनंत जीवन मांग सकते हो, पवित्र आत्मा मांग सकते हो। तुहानूं प्रभु समा दे रहा है, समा दे रहा है मंगण दा। आओ प्रभु पर मांग करो कि प्रभु मैनूं मसा दे, प्रभु मैनूं बेदारी दे। प्रभु शमशून ने जिदा पुकारिया, प्रभु मैनूं एक बार फिर शक्ति दे। तुसीं पुकारो, प्रभु तुहानूं भी दवेगा। वो पहले युग दे अंदर जिहड़ा अभिषेक काम कर रहा सी, जिहड़ी एकता काम कर रही सी, जिहड़ा प्यार काम कर रहा सी, प्रभु तुहाडे विच भी करना चाहता है। प्रभु तुहानूं भी इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु तुहानूं भी आशीष ते बरकत देना चाहता है। प्रभु तुहाडे बंधनां नूं तोड़ना चाहता है। मेरा यीशु तैयार है बंधनां नूं तोड़न दे लई, क्योंकि आज तो 2000 साल पहला मेरे यीशु मसीह ने सलीब उत्ते जाके अपना पवित्र बलिदान दिता, कोलियां दी मार खाधी,
ਨਿੱਜ ਆਪਣੀ ਪਸਰੀ ਚ ਖਾਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀਆਂ बेटियां तेरे बेटे प्रभु तेरे को मांग रहे हैं। सच्चे परमेश्वर तू उन्हें बरकत दे, सच्चे पिता तू उन्हें तंदुरुस्ती दे, सच्चे खुदा इन्हें आशीष दे। प्रभु ये प्रार्थना दे जोधे बन जान, पिता तेरे कलाम दे जोधे बन जान। और प्रभु ये तेरी बेटियां जो मांग रही है प्रभु तू उन्हें बड़ी बड़ी कृपा कर प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा काम करे, सच्चे खुदा तेरा पवित्र आत्मा काम करे, जलाली पिता तेरा पवित्र आत्मा काम करे, झूले यहोवा तेरा पवित्र आत्मा काम करे, सर्वशक्तिमान पिता तेरा पवित्र आत्मा काम करे। तेरे नाम नु महिमा मिले पिता। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह मैं तेरी जयकार करदा प्रभु। मैं अपने आप नु तेरा तरफ सौंप रहा प्रभु, अपने आप दा समर्पण कर रहा प्रभु जी। एक बार फिर तेरे घुटनों के अगे टेकदा है प्रभु, नम्रता दे नाल प्रभु जी। प्रभु मैनू जोर दे, पाल दे, शक्ति दे प्रभु। मैं तेरे आत्मा की आवाज नु सुना और प्रभु कले भी अनदेखा ना करा। मेरे प्रभु तेरे वचन च अगे वादा जावा और प्रभु अपने जीवन के विचों पहला उद्देश्य तेरा तेरा कलाम नु रखा प्रभु। जिस घर में बंदगी हुई है यीशु नाम जिसका नु बड़ी बड़ी बरकत है पिता। इस घर के अंदर तेरी आशीष आ जाए प्रभु, आग दा खंबा आ जाए और प्रभु हर एक शैतान की प्लानिंग यीशु नाम च हो जाए। सब दुष्ट दी शक्तियां यीशु नाम च टूट जान, सारे विरोधी दी आत्मा दूर हो जान। अल्लाह ताला चेस कर देने वाला तू है प्रभु, बंधन तोड़ देने वाला तू है प्रभु, तुम शर्मिंदा करने वाला तू है खुदा। तेरे वचन दिया तो काम करे, तेरे ही वचन की शक्ति काम करे, तेरे वचन की सामर्थ तेरे पिता की। हालेलुया मेरे पिता तेरा पवित्र आत्मा स्वर्गीय पिता काम करे, तेरी आत्मा पिता की काम करे, तेरी सामर्थ उतरे प्रभु। इससे मेरे गहरी दे बंधन टूटन, शैतान दे बंधन टूटन, अंधकोर के दाव का दूर जान, विरोधी दी आत्मा को जित कर दा, अंधकोर की शक्तियां तेरे नाम च मैं दान दा दूर जाए प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा इस कार्य काम करे, सारी जरूरतें पूरा कर प्रभु। जिन्हों को कारोबार नहीं उन्होंने प्रभु उनके परिवार की जरूरत पूरा कर प्रभु। जिन्होंने तेरे वचन सुनिया ये अपने जीवन के अंदर इस कलाम को पूरा कर प्रभु। ये सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि मेरे परमेश्वर चलने वाले बन जान। तेरा पवित्र आत्मा सदाली परमेश्वर काम करे तेरे हथां दे विच प्रभु। सब नूं कर दे बड़ी बरकत। दुआ यीशु मसीह दे नाम दे विच मांगदे।